Welcome to another class for A-level media studies, and we were doing textual analysis. In the previous syllabus, they used to call it textual analysis, but in the new syllabus, they call it media texts. Although textual analysis is the right term because it is in practice in all film schools quite for a long time. लेकिन I don't know why Cambridge is calling it media text or media text कह लो textual analysis कह लो एक ही बात है. We talked about camera work. We explored about editing strategies and terminologies. We recently learned mise-en-scène or mise-en-scène, where we explored lighting, acting styles, placement of stuff, and makeup usage and props. We touched all those things, and I uploaded 3 recordings on YouTube for you guys and shared the link as well. And I think mise-en-scène is done by now. Obviously, this practice is not enough for Cambridge. अब हम इसको फाइन ट्यून करेंगे एक दफा सारा एक ट्रांजिशन पहली साइकिल कंप्लीट हो जाए. So today we are going to touch the last element of that cycle, and that is sound. In sound, हमने फिल्म में sound को कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उस क्लिप के साउंड को कैसे ऑब्जर्व करना है, एंड साउंड में कैमरेज हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. They want us to know what is diegetic and non-diegetic sound, what is synchronous and asynchronous sound, what are sound effects, sound motive, sound bridge, what is dialogue, what is voiceover, what is narration, what is mode of address or direct address, sound mixing क्या चीज होती है, and what is sound perspective. They want us to know all these things. Along with that, they want us कि what soundtrack में स्कोर किसको बोलते हैं, इन्सिडेंटल म्यूजिक किसको बोलते हैं, थीम्स एंड स्टिंग्स किसको बोलती है, एम्बिएंट साउंड किसको कहते हैं. ये बुलेट पॉइंट्स ऐसे नहीं होती हैं, ये कैम्ब्रिज ने आई डोंट नो किस बेस पे इसको सेपरेट कर दिया, बट हमें ये सारी टर्म्स जो हैं इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है. हमने mise-en-scène में जैसे लोकेशन, स्टूडियो, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉपर्टीज, लाइटिंग, कलर डिजाइन वगैरह को थोड़ा सा टच किया है. अभी हमने इसमें और चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे. अभी हमने एक साइकिल और चलाना है, उसके बाद यू वुड बी परफेक्ट, एंड फिर मैं आपसे असाइनमेंट्स और ज्यादा स्पीड से लूंगा, बिकॉज आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज होगी और कुछ भी नहीं होगा. हर साल ऐसे ही होता है. तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. मीडिया स्टडीज, अगर आप इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो ना, जैसे उर्दू को मिनिमम देते हो, बेसिक मीडिया स्टडीज आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा. यू विल एंड अप गेटिंग अ गुड ग्रेड. अगर आप इसको बिल्कुल ही छोड़ दोगे, जैसे बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो फिर वो मीडिया स्टडीज उनके लिए हॉन्टिंग चीज बन जाएगा. तो इसमें कोई डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है. इसमें सिर्फ क्या है, आपको साथ साथ चीजें करते रहना है बस. इसमें आपके ब्रेन इंटेलेक्ट का कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्किल बेस्ड कोर्स. एनीवेज, सो साउंड, let's explore few of these terms, or I would also try to show you some videos. Sound, बल्कि सबसे पहले नहीं, हाँ पहले आपको डिस्कस करके उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. ओके, सबसे पहले व्हाट इज डायजेटिक साउंड. डायजेटिक साउंड को हम लिटरल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्टर स्पीकिंग टू ईच अदर, जो कि डायलॉग होता है. साउंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन. अगर आपको साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीज नजर आ रही है, दैट कुड बी एन एम्बुलेंस, दैट कुड बी अ कार मूविंग, कोई somebody is talking, म्यूजिक इज बीइंग प्लेड, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायजेटिक साउंड. Diegetic sounds are those that link to something visible on screen and can also be heard by the characters. This includes dialogue and the sound of objects, things on screen. Without the sound, the visuals do not set the tone of the screen or the scene. By hearing the characters' booming voices yelling loudly at one another, the audience can understand that this is a tense moment. Diegetic sounds are often thought to be realistic, such as fight scenes in a movie when the character as well as the viewers can interpret the different sounds. मतलब इन सादा लफ्जों में बताऊं तो अगर आपको साउंड सोर्स नजर आ रही है स्क्रीन पे, तो वो डायजेटिक साउंड है, और इसका कॉन्ट्ररी रिवर्स क्या है, वो नॉन डायजेटिक साउंड होगा, जो कि साउंड सोर्स नजर नहीं आ रही. अगर दो लोग आपस में बात करें न्यूयॉर्क की किसी बिल्डिंग में, और आपको पुलिस की सायरन, आपको पता है न्यूयॉर्क में एम्बुलेंस से पुलिस की आवाजें तो आती रहती हैं, और बहुत ज्यादा वो एको भी कर रही है, बिकॉज़ बिल्डिंग्स आर ऑल देयर. तो अगर आपको वो एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आ रही, बट उसकी सिर्फ आवाज आ रही, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन डायजेटिक बन जाएगा. इट इज देयर इन दैट एनवायरनमेंट, बट हमें नजर तो नहीं आ रही ना ऑन स्क्रीन. अगर ऑन स्क्रीन नजर आ रही है
तो फिर वो डायजेटिक होगी। इस तरह नरेशन में जब नरेटर नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ उसकी आवाज पीछे से आ रही होती है, तो वो नरेशन तो होगी, और उसके साथ साथ ये देखो ये दो कैटेगरीज हैं, वो फॉल कर जाएगी नॉन डायजेटिक में, बिकॉज नरेटर नजर नहीं आ रहा। अगर ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है तो फिर वो डायजेटिक होगी। Well, non-diegetic is also known as commentary or non-literal or narration जो मर्जी बोल दो. The external sounds are more commonly known as non-diegetic sound. For example, a narrator telling a story, हम बात कर चुके हैं. Non-diegetic sound is added to a film in post-production. Usually post-production में ऐड की जाती है, ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड करके, या उन्होंने, और हम लोग तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट पर डाउनलोड करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल फिल्म्स हैं वहाँ पे पायरेसी एंड कॉपीराइट के बहुत इश्यूज है, वो खुद जाके एम्बियंस पे जाके वो साउंड अलग से साउंड रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड करते हैं, बर्ड्स की साउंड वो खुद रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पब्लिक पार्क में दो कैरेक्टर्स का वॉक एंड टॉक का सीन शूट करना है, तो याद रखना वो उनका साउंड अलग रिकॉर्ड करते हैं, कॉलर माइक के थ्रू तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है, तो फिल्म है, अगर फिल्म है तो फिर वो माइक छुपे होने चाहिए ना, इट शुड लुक लाइक नेचुरल। तो उन्होंने बूम माइक यानी रॉड पकड़ा होता है, उस पर माइक लगा होता है, और वो माइक साउंड वाला बंदा कैरेक्टर्स के साथ साथ चल रहा होता है, माइक थोड़ा ऊपर रखा होता है ताकि वो कैमरे में नजर ना आए। और वो माइक कौन सा होता है, वो शॉर्ट गन या यूनि डायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ जिस कैरेक्टर की तरफ किया होता है ना, वो दोनों की आवाज कैप्चर कर रहा होता है और सराउंडिंग की आवाज को कैंसिल कर रहा होता है। तो सराउंडिंग की जो गार्डन वाली साउंड है वो अलहदा से रिकॉर्ड की जाती है दूसरे टाइप के माइक से, जिसपे बर्ड्स एंड ग्राउंड जो ग्राउंड या पार्क की हम नहीं होती है, एक खास साउंड होती है, एयर की साउंड होती है, दूर से हल्की हल्की साउंड एम्बियंस की भी आ रही होती है, वो अलहदा से रिकॉर्ड करते हैं, और एडिटिंग में उसको प्रॉपरली प्लेस ऐसे किया जाता है कि लगे कि जैसे वो ऑन द स्पॉट ही सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। सो दैट काइंड ऑफ साउंड इज अगेन कॉल्ड नॉन डायजेटिक, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में, यानी एडिटिंग को हम पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, शूटिंग के बाद के प्रोसेस को पोस्ट प्रोडक्शन बोलेंगे। एग्जांपल्स ऑफ नॉन डायजेटिक साउंड इंक्लूड वॉइस ओवर, नरेशंस, मूड म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक या स्कोर, ये क्या होता है भी हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड साउंड इफेक्ट्स एडेड फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, सब क्या है नॉन डायजेटिक की कैटेगरी में आएगा। साउंड इज सेड टू बी नॉन डायजेटिक। अच्छा, मेरे हैंडआउट में ना आपको एक चीज नजर आएगी कि मैंने एक ही बात को सर ने बार बार बताया हुआ डिफरेंट स्टाइल से, बिकॉज मैं आपको एक तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा होता हूँ, सेकेंडली आपको कोई भी डेफिनेशन याद रह जाए, ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं आती, लेकिन आपको बात आंसर में लिखना पड़ सकता है कि इट इज नॉन डायजेटिक बिकॉज साउंड सोर्स इज नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डेफिनेशन का आइडिया होगा ना, आपको होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं एक ही बात डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है। साउंड इज सेड टू बी अगेन नॉन डायजेटिक व्हेन इट्स सोर्स इज नॉट प्रेजेंट, जो बात कर चुके हैं, मसलन म्यूजिक और स्कोर, argument, emotions, actors, commentary, narrations, extra sound added to the effect. एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल रहने दो, मतलब हम अभी मेरा मूड नहीं है एग्जाम्पल दिखाने का आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो कैटेगरीज हो रहे हैं, पहले कैटेगरीज थी दो अम्ब्रेलाज हैं, डायजेटिक एंड नॉन डायजेटिक की, अब अगेन दो सेपरेट कैटेगरीज है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अगर साउंड जो स्क्रीन पर चल रहा है वो एक्शन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, मसलन पियानो की आवाज भी नजर आ रही है और साथ साथ पियानिस्ट की, जरूरी नहीं थ्रू आउट, लेकिन किसी एक शॉट में उन्होंने दिखा दिया है कि जैसे जैसे पियानिस्ट की प्रेस हो रही है वैसे वैसे ही साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक मिनी क्लिप में, मिनी शॉट में, एक सीन में 50 शॉट्स हो सकती है ना, ठीक है, एक पियानिस्ट का सीन है उसमें लाइक से 15 डिफरेंट जगहों पे जाके उन्होंने पियानिस्ट को कैप्चर किया है, फिर 15 डिफरेंट, कभी लो शॉट, मिड शॉट, हाई एंगल, लो एंगल, ओवर द शोल्डर, मल्टीपल शॉट्स लिए, लेट्स से देयर 15 15, और वो सिर्फ एक शॉट में क्लोजअप में दिखाते हैं कि जैसे जैसे की प्रेस हो रही है वैसे वैसे पियानो की आवाज आ रही है, बाकी में की नहीं दिखा रहे, सिर्फ पियानिस्ट को और सराउंडिंग को दिखा रहे हैं, स्टिल इट विल बी अ सिंक्रोनस साउंड, बिकॉज उन्होंने एक दफा तो दिखा दिया ना कि एक्शन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द साउंड। आई होप it is little clear for you. अच्छा, मैं एक मिनट की अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लें, and let's get back to the party. Here we go. ठीक है, ये हम देख लेते हैं पियानिस्ट की एग्जाम्पल। let me check it first because just give me a sec while recording. I don't like such kind of delays, but check out this shot from Kill Bill. Is there anything familiar? hold on a sec, देख करके देखते हैं इसमें है क्या। Oh yeah, it's good. Let's check that
this out. Stop share, again sharing. Here we go. Sorry guys, during recording I found that. I hope you can see my screen now. And देखते synchronous sound है कि नहीं है. इट वॉज ठीक है. एक छोटी सी शॉर्ट थी. उन्होंने थ्रू आउट नहीं दिखाया. एक शॉर्ट दिखा दी जिससे उन्होंने एक इस्टेब्लिश कर दिया कि ये सिंक्रोनस है. ठीक है. ये वैसे पियानिस्ट मूवी बहुत अच्छी है. इतने पुराने जमाने की नहीं, लेकिन उन्होंने जमाना पुराना दिखाया, जर्मनी वर्ल्ड वॉर का. इट्स रियली वर्थ वॉचिंग. ओके. उसके बाद व्हाट इज एसिंक्रोनस साउंड? उसका कॉन्ट्ररी, जिसमें साउंड इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द एक्शंस. ऐसे आपने देखोगे मीडिया स्टडीज में चीजें बहुत लॉजिकल हैं. जैसा नाम है उसी से आपको उसका पता चल जाता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट all the terms and terminologies. Asynchronous sound effects are not matched with the visible source of the sound on screen. Such sounds are included so as to provide an appropriate emotional nonsense. And they may also add the realism to the film. जो हम effects देखते हैं जिसमें में वो synchronize तो नहीं होते sound effects, लेकिन वो एक value feel add कर रहे होते हैं. That is example क्या, filmmaker might opt to include the background sound of an ambulance siren while the foreground sound and foreground के साथ साथ background ambulance भी चलना शुरू हो जाएगी. दो sounds parallel चल रहे होंगे. and image portrays as arguing couple. दो लोग बातें कर रहे हैं, उनका एक तो उनकी डायलॉग चल रहा है, वो भी एक साउंड की टाइप है. फिर डायलॉग के साथ साथ एक इंटेंस साउंड इफेक्ट भी चल रहा है. और थर्ड साउंड एक एम्बुलेंस जो कि बाइक से गुजरी तो दूर से उसकी, इसे बोलते हैं एम्बिएंट साउंड भी, एक साउंड पर्सपेक्टिव भी. एम्बुलेंस आई और चली गई तो जब जा रही होगी तो दूर आवाज ऐसे ऐसा स्लो होना शुरू हो जाएगी. हम ये सुने पढ़ेंगे आज. ठीक है. सो ये सब किया जा सकता है. तो ये द एसिंक्रोनस एम्बुलेंस सायरन अंडरस्कोर्स द फिजिक इंजरी इंकर्ड इन द आर्ग्यूमेंट. खैर ये तो एक रिप्रेजेंटेशन थ्योरी हम पढ़ेंगे, तब इसको एक्सप्लोर करेंगे कि वो एम्बुलेंस की आवाज सिर्फ पीछे बैकग्राउंड पे सुनाने का मकसद सिर्फ रियलिज्म नहीं था कि आपको रियलिस्टिक लगे कि सिटीज में एम्बुलेंसेस भी गुजरती हैं तो आवाज आ भी सकती है, लेकिन वो क्योंकि एक डैमेजिंग सा, एक हर्टिंग सा आर्गुमेंट शायद उन लोगों में डायलॉग चल रहा था, तो उन्होंने इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करने के लिए साउंड्स लगा दिया. एनीवेज अजीब सी बात है. नहीं अजीब बात नहीं है, ऐसा करता है हॉलीवुड. हम लोग इतना डीप नहीं सोचते. मूविंग ऑन. What is sound effect? Not ways, what are sound effects actually? Sound effects are artificially created or enhanced sound or sound process used to emphasize artistic or other contents of films, TV shows, live performance, animation, video games, music or other media. अच्छा ना, मैं आपको कुछ प्रीएम्प्टिवली बार बार एक चीज बताऊंगा आपको कि सर ये आप ये कॉमन सी बात हमें बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मैं कई सालों का एक्सपीरियंस है. बच्चे आखिर में मिक्स करते हैं, सर साउंड इफेक्ट होगा कि ये सिंक्रोनस होगा. भाई एट द सेम टाइम एक चीज डायजेटिक भी हो सकती है, सिंक्रोनस भी हो सकती है, इफेक्ट भी हो सकती है. क्योंकि डायजेटिक इज अ कैटेगरी. इस कैटेगरी में बहुत से साउंड फॉल करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना करो. इस तरह सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस भी एक कैटेगरी है. ठीक है. तो एट द सेम टाइम एक साउंड एलिमेंट वो डायजेटिक भी होगा और हो सकता है वो ये सिंक्रोनस हो. यानी साउंड सोर्स तो नजर आ रहा है लेकिन वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा एक्शन, और वो साउंड इफेक्ट भी हो सकता है. एग्जांपल दे रहा हूँ खाली. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस में इसलिए मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ ये बातें, बच्चों वाली बातें. ठीक है. तो साउंड इफेक्ट्स क्या है? जो भी इफेक्ट्स आर्टिफिशियली ऐड किए जाते हैं या इनहेंस किए जाते हैं उसकी, जैसे कि हम कहते हैं हम रिकॉर्डिंग करते हैं और फिल्म में आपको जानबूझ के रोबोटिक आवाज देनी हो, या हॉल में बात करें तो हॉलो आवाज देनी हो, तो वो आमतौर पे स्टूडियो में इफेक्ट्स को एनहांस किया जाता है. तो दैट इज अगेन कॉल्ड साउंड इफेक्ट. साउंड मोटिव, इसको साउंड हार्मोनिक भी बोलते हैं या हार्मोनिटिक भी बोलते हैं. A sound effect or combination of sound effects that are associated with a particular character, setting, situation or idea throughout the film.
अगर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो उसको साउंड मोटिव का वर्ड भी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द साउंड मोटिव्स कंडीशन हमारे थॉट्स को, ऑडियंस को कंडीशन करते हैं इमोशनली फॉर द इंटरवेंशन, अराइवल और एक्शन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। The sound motives can be very useful in the rough cut, where they help clarify the narrative functions of the characters and provide a sound association of those characters as we move through the story. The use of sound motives can help shape a story that requires many characters in many locations and help unify the film, sustain in narrative and thematic development. इसको हम आगे भी जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि साउंड मोटिव क्या है। वो एक सिचुएशन या कैरेक्टर हम एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि जब फिल्म में कोई सैड सिचुएशन आती है तो साउंड, जो पिछले साउंड चल रहा होता है वो सैड साउंड हो जाता है। वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड साउंड है तो साउंड इफेक्ट भी कहलाएगा, इसके साथ साथ साउंड मोटिव भी कहलाएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो, अगर वो हैप्पी सिचुएशन है और हैप्पी साउंड पीछे लगा दिया जाता है। हैप्पी, आपको पता ना, आप पियानो से हैप्पी ट्यून भी बना सकते हो, सैड ट्यून बना सकते हो, गिटार से भी, वायलिन से भी, अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बना सकते हो। ठीक है, सो दैट थिंग अगर वो उस फील को, इमोशंस को एनहांस करने के लिए लगाई गई है और सिचुएशन तक महदूद कर दिया गया तो दैट इज कॉल्ड साउंड मोटिव। आप कहोगे यार मूवी जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस थी ना, उसमें आई रियली लाइक साउंड मोटिव्स। अब जो साउंड की नॉलेज रखने वाला बंदा है, जो फिल्म का स्टूडेंट है, वो दे वुड लाइक इट। तो इसी तरह एग्जाम में अगर आप लिखते हो ना कि द साउंड मोटिव इज आल्सो एडेड इंटेंसिटी इन द सीन, तो वो समझ जाएगा कि इस बच्ची को या इस बच्चे को साउंड मोटिव की टर्म का पता है एंड शी और ही इज इफेक्टिवली यूजिंग इट। साउंड मोटिव कैन आल्सो बी अ साउंड इफेक्ट। तो ये सारी ऑपोजिट टर्म्स नहीं है, दे कैन बी ओवरलैपिंग। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। उसके बाद साउंड ब्रिज क्या, आई एम ग्लैड ब्रिज का वर्ड ही शो कर रहा है कि ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट टू थिंग्स, राइट? सो साउंड ब्रिज इज व्हेन द साउंड कम्स इन बिफोर द इमेजेस ऑफ नेक्स्ट सीन, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको याद है मैंने आपको बताया था जे कट क्या होता है। एडिटिंग में वो जे कट था और साउंड की टर्मिनोलॉजी में उसको हम साउंड ब्रिज बोलेंगे, क्योंकि अगर एक सीन खत्म हुआ और एक नैनो सेकंड का गैप आया और दूसरा सीन लग गया तो नैनो सेकंड की जो ब्लैक स्क्रीन है वो तो हम नोटिस ही नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज नैनो सेकंड हमें कहाँ पता चलता है, लेकिन हमें जो नैनो सेकंड का साउंड में पॉज आएगा ना, हम जरूर अनइंटेंशनली नोटिस करेंगे। उस पॉज को खत्म करने के लिए ब्रिज लगा दिया जाता है। ठीक है, माइनर सा साउंड ब्रिज, माइनर सा जे कट, जिसमें भी पिछला सीन चल ही रहा था कि एकदम ट्रैफिक का शोर आया और सड़क वाला सीन आ गया, नाम का ओके फाइन, देयर इज नथिंग अनयूजुअल एंड एबनॉर्मल अबाउट दिस सीन। हॉलीवुड फिल्म्स हम देखते हैं, आपको आप नोटिस अब करोगे आपको लगेगा हाँ यार एक सेकंड का साउंड ब्रिज लगा हुआ है, जगह जगह लगा होगा। ठीक है, साउंड ब्रिजेस आर ऑफन यूज्ड टू गेट द अटेंशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड जो मैंने आपको रीजन बताया वो भी होता है। अच्छा, आप क्या करोगे जब आप टेक्सचुअल एनालिसिस करोगे और साउंड वाला पार्ट हैंडल कर रहे होगे, तो आप कहोगे कि दे हैव इफेक्टिवली यूज्ड साउंड ब्रिज टू keep the audience connected or to get their attention or keep them involved or curious about the next scene। समझ रहे हो? अब आपने रीजन भी इसमें से आपको मिल जाएंगे। मूविंग ऑन, डायलॉग। व्हाट इज डायलॉग? हमें पता है कन्वर्सेशन को डायलॉग बोलते हैं। Any piece of conversation or comment or speech has to elaborate on the plot or reveal something about a character, a form of exposition। ठीक है, कैरेक्टर अपनी बातें करके आपको अपने आप को एक्सपोज करता है, आपको एक्सप्रेस करता है, तो डायलॉग इज देयर। Throwaway dialogue such as "Good morning, Bob" has to be kept to minimum or eliminated completely। ठीक है, ऐसे डायलॉग हम आम तौर पे लिमिटेड रखते हैं। It is refined and clever. Films are an artistic and creative expression। हम नॉर्मली डायलॉग को दो लोगों के बीच में एज अ कन्वर्सेशन के तौर पे पेश करते हैं। अगर आपकी बात नहीं समझ में आई तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। Any dialogue that is not usable will need ADR, automatic or automated dialogue replacement, which is recording the dialogue in a studio during post मतलब एडिटिंग को बोलते हैं, with the actors। अब आपने ऑन स्क्रीन वाइल शूटिंग रिकॉर्डिंग साथ साथ कर रहे होते हैं, आपको पता है माइक्स होते हैं और प्रेफरेंस यही की जाती है कि ऑन द स्पॉट साउंड को रिकॉर्ड किया जाए, बिकॉज एडिटिंग में साउंड जो है उसको ठीक करना, मैच करना, सिंक्रोनाइज करना समटाइम्स ट्रिकी हो जाता है। पहले ये बहुत ट्रिकी था, आप और मेरे लिए ट्रिकी हो सकता था, लेकिन ये जो आजकल जो एडिटिंग टूल्स अपडेट हो गए हैं, एडोबी साउंड बूथ हो गया, एडोबी प्रीमियर हो गया,
ये बहुत सी केसेस में साउंड को ऑटो सिंक्रोनाइज कर देता है, पहले नहीं था ऐसा कुछ 10 साल पहले। तो साउंड एक बहुत हेक्टिक एंड हेल्थ थिंग टू मैनेज, इसलिए कोशिश होती थी कि जो करना है ऑन द स्पॉट वाइल रिकॉर्डिंग कर लिया जाए। सो अब एडीआर आ गया हुआ, यानी कि हम उसको बाद में री क्या कहते हैं, डबिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, डबिंग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि डबिंग हो रही है स्टूडियो रूम में, दिस इज रॉन्ग टर्म। डबिंग होती है किसी फॉरेन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना, दैट इज टर्किश जो ड्रामास है वो डब ड्रामास है, कोई भी ड्रामा आप देखते हैं फॉरेन लैंग्वेज के अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सो जो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है सेम चीज उसको हम बोलेंगे कि अगेन एडीआर कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली स्टूडियोज में ये लैंग्वेज यूज की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ डायलॉग दोबारा लेने की जरूरत पड़ गई है। इन एडिशन टू द डायलॉग बीइंग क्लीन, it also needs to be leveled so your dynamic range is not jumping all over the place। अब एक और चीज है, फॉर एग्जांपल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, वहां पे फील और थी, मेन एनवायरनमेंट में किया फील और था, एक हमें डायलॉग जो था ना एक पैराग्राफ स्टूडियो में करना पड़ा, बाकी सारा फिल्म में किया, बहुत डिफरेंस फील होगा। तो उसको एक जैसा करने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं, साउंड लेवल्स को, उनकी डायनामिक रेंज को छेड़ते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। अभी आपको सिर्फ इतना ही रफ आइडिया होना चाहिए, दैट इज ऑल, ठीक है। मुश्किल लग रहा है तो परेशान नहीं होना, दोबारा आप पढ़ोगे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट इतना ही आपको, क्योंकि कैम्ब्रिज की मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन शेयर की कि उनको वो चाहते हैं आपको सिर्फ पता हो डायजेटिक और नॉन डायजेटिक क्या, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या, साउंड इफेक्ट्स, मोटिव एंड ब्रिज क्या होता है, दैट्स ऑल। डायलॉग क्या होता है, वॉइस ओवर क्या होता है। तो हम अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही टर्म्स वो आपके एनालिसिस में देखना चाहेगा कि द एग्जामिनर वुड लव इट कि आपने ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, एंड इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेल, डायलॉग के बाद लेट्स मूव ऑन टू वॉइस ओवर। वॉइस ओवर ऑल्सो नोन एज ऑफ कैमरा एंड ऑफ स्टेज कमेंट्री, ठीक है, is a production technique where a voice that is not part of the narrative or non-diegetic, यानी जो फिल्म का हिस्सा नहीं है, is used in a radio, TV production, filmmaking, theater or other presentations. The voiceover is read from a script and may be spoken by someone who appears elsewhere in the production or maybe by specialist voice talent, जो हम voice background पे आ रही होती है, narration आ रही होती है, उसको हम voice over बोलते हैं, ठीक है। तो voice over ने just narration देनी होती है। It is usually pre-recorded and placed over the top of a film or video and commonly used in documentaries. अगर आप A2 में डॉक्यूमेंट्री करोगे तो मैं इसकी आपको बहुत अच्छी टिप्स दूंगा। वॉइस ओवर यानी कि अभी एक स्टूडेंट था, वो बाकी लोग म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, आपके सीनियर्स में एक ग्रुप है बस, एक वो जो डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहा है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने से कहा कि बेटा भूल जाओ, सिर्फ पहले आप स्टोरी क्रिएट करो, स्टोरी रफ करने के बाद उसको आप नरेशन या वॉइस जो भी डायलॉग जो भी चलना है वो लिखो, उसके अकॉर्डिंगली विजुअल शूट करोगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वॉइस ओवर इज यूज्ड इन वीडियो गेम्स एज वेल एंड ओल्ड होल्ड मैसेजेस, जो होल्ड करते हो, कहते हैं ना प्लीज होल्ड, बैंक कॉल करो या हेल्पलाइन पे कॉल करो, स्टफ लाइक दैट। आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल नाउ। एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, अगर आप में से किसी की बहुत क्लासी आवाज है, बहुत हैवी एंड सॉलिड बेस है, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी फ्यूचर में बन सकते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये काम करते हैं रेडियोज के साथ और बाकी डॉक्यूमेंट्रीज एंड चैनल्स के साथ। सो मूविंग ऑन, मोड ऑफ एड्रेस एंड डायरेक्ट एड्रेस क्या है? This is something new for you people, I am sure. The basic definition of sound mixing is taking all the scenes, ठीक है। सादा लफ्जों में पहले बताता हूँ, आपका अगर आपने जिंदगी में कभी एडिटिंग की है, नहीं की कोई मसला नहीं है, आपने कोई एडिटिंग स्क्रीन देखी होगी, यानी टाइमलाइन देखी होगी, विंडोज मूवी मेकर देखा होगा या एडोबी प्रीमियर, कुछ भी देखा नहीं देखा कोई मसला नहीं। इमेजिन करो एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हर लाइन पे आपने डिफरेंट साउंड एलिमेंट रखा हुआ है, कहीं पे वॉइस ओवर रखा हुआ है, उससे नीचे वाली लाइन में आपने इफेक्ट्स रखे हैं, उसके नीचे वाले आपने पूरा साउंड ट्रैक रखा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मोड ऑफ एड्रेस, ठीक है, या डायरेक्ट एड्रेस। अब पढ़ते हैं। The basic definition of sound mixing is taking all the elements of film soundtrack, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं फिल्म के, डायलॉग होते हैं फिल्म में, एसएफएक्स यानी साउंड इफेक्ट्स होते हैं, फॉलीज बताऊंगा फॉली क्या होता है, वैसे मैंने यहाँ पे बताया होगा प्रॉब्ली। अच्छा, उसके बाद म्यूजिक होता है, मिक्सिंग देम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग दैट साउंड्स गुड, ठीक है, समथिंग कूल, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एड्रेस, यानी एसएफएक्स को बताया हुआ यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स है। फॉली मीन्स मोर पर्सनल नॉइस। अच्छा, ह्यूमन बींग्स जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं वॉकिंग के साथ, उनके शू स्टेप्स या फुट स्टेप्स की आवाज,
उनके फैब्रिक जब चलते तो हमारे फैब्रिक भी हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको फील होता है अगर आप घर में पिन ड्रॉप साइलेंस है, रात का टाइम है, सर्दियां और एसी नहीं चलते, तो आपको कोई अगर आपके नेक्स्ट टू योर रूम कोई वॉक करके गुजरेगा, आपको फील हो जाएगा, अगर वो बहुत साइलेंटली भी गुजरे, बिकॉज जब आप हमारा हाथ मूव करता है, हमारा फैब्रिक भी हल्का सा मूव करता है, उसका भी वो भी पर्सनल नॉइज है, उसको भी हम फॉलिस बोलेंगे। क्लोथिंग नॉइज जैसे कि ईटिंग नॉइज, जब क्रच क्रच आप लेस खाओ या डोमेटो वगैरह खाओ तो इस तरह का साउंड, और काइंड ऑफ नॉइजेस कॉज्ड बाय अ पर्सन, इसको क्या बोलेंगे, फॉलीज, कुछ उसको फूले भी बोलते हैं, एनीवेज फॉलीज होता ही है। आगे, द प्रोसेस ड्यूरिंग द पोस्ट, अच्छा अगेन इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से दी गई है। The process during the post-production stage of a film or TV program in which collection of recorded sounds are combined into one, ठीक है, और more channels, sound के channels होते हैं, हम बाद में explore करेंगे, with adjusting the many attributes of sounds and sources of signals level blah blah blah, it's called mode of address। इसको याद करने का अगर आपको छोटा सा टिप तो वो ये है कि किस तरीके से फिल्म ऑडियंस को एड्रेस करना चाह रही है, ऑडियंस को कुछ कन्वे करना चाह रही है यूजिंग साउंड, इसमें हर चीज आ जाएगी ना, तो इसको मोड ऑफ एड्रेस इसलिए बोलते हैं। ये रीजन ही मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद हाउ मच स्टफ वी हैव क्वाइट अ लॉट स्टफ लेफ्ट, यहाँ पे रुक के आई वुड लाइक टू, अच्छा साउंड पर्सपेक्टिव तक हम कर लेते हैं बात, ठीक है। साउंड पर्सपेक्टिव क्या है, देखो अगर मैं आपसे दूर पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो आपको आवाज दूर दूर एक अलग फील आएगी, करीब आके बात कर रहा हूँ अलग फील आएगी, अब ऑडिटोरियम में बात कर रहा हूँ और फील है, गाड़ी आकर चली गई तो गाड़ी अगर आ रही है तो साउंड और होगा, जाने का साउंड और होता है, ठीक है। इवन अगर आपकी स्क्रीन में राइट साइड से अपेयर होके लेफ्ट साइड पे गाड़ी शू करके गुजर रही है, एथिकली टेक्नोलॉजी वाइज पहले वो आपके एयरफोन में हेडफोन पे राइट हेडफोन पे आवाज आनी चाहिए कि दूर से आवाज आ रही है ऐसे करके ना, ऐसा तो ऊंची हो रही है, और सॉरी फनी एग्जांपल लेकिन शायद समझ आ जाए, और फिर वो लेफ्ट पे एग्जिट कर रही है तो आपके लेफ्ट ईयरफोन पे उसको एग्जिट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड साउंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। The sound perspective is the distance and position of the audio, creating realism in the sense of space within the film. For example, a film can depict a person from far away walking towards the camera. हम ये देखते होते हैं। The sound perspective needs to be altered through the short distance and gradually increase the volume as the actor gets closer in the shot. नहीं करोगे कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन करोगे तो फिल्म आपकी प्रोफेशनल लगेगी। आम ऑडियंस शायद ये इंटेंशनली नोटिस नहीं करते, पर अनइंटेंशनली करते हैं। हम कहते हैं फिल्म बड़ी, ये गाना या स्टूडेंट वर्क बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, रीजन नहीं पता बट इट लुक्स गुड। वो हमें, क्योंकि हमने फिल्म नहीं पढ़ी ना, हमें स्टूडेंट नहीं थे आप लोग, आपको नहीं पता था क्या रीजन है, लेकिन ये पता था कि अच्छा बुरे में आपको डिफरेंस पता था। हाउएवर जो फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है, जिनको आप इम्प्रेस करना चाह रहे हो, कल को अगर अपना करियर आप यूट्यूब ब्लॉगर के तौर पे बनाना चाह रहे हो, या कोई प्रोडक्शन कंपनी बनाना चाह रहे हो, आप ज्वाइन करना चाह रहे हो किसी मार्केटिंग एजेंसी को, या अपना मीडिया हाउस बनाना चाह रहे हो, इंशाल्लाह आप में से बहुत से बच्चे ऐसा करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल बी सक्सेसफुल अल्टीमेटली होपफुली। सो जब आप काम करते हो तो इंडस्ट्री के लोग ये चीजें नोटिस जरूर करते हैं, ठीक है। उन्हीं को आपने इम्प्रेस करना है, बिकॉज उन्हीं ने आपसे कोलैबोरेशन करनी, उन्हीं ने आपको काम देना है। Moreover, a film can depict a character walking into a room and closing the door. अगर डोर रूम हॉलो था, खाली था, तो डोर की साउंड डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर हम लोग तो इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा देते हैं ना, मतलब इजी वे बता रहा हूँ, विच इज बैड वे। रियलिटी में आपको अलग से इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और फिर इसको हॉलो इफेक्ट एग्जैजरेट करना पड़ता है ना, आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा एडिटिंग में। As the camera remains outside of the room, the character voice inside room muted and fainted, ठीक है। अब अगर आप कोई बंदा बातें करता करता फोन पे कि रूम में और कैमरा भी रूम में है, अब वो बाथरूम में चला जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है, तो आवाज तो आती है लेकिन क्लियर नहीं होती है, टोन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सब कुछ आपको ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। This change in sound perspective generates a greater perception of realism in creating space in film, and is dictated by the volume, timbre, pitch, echo, which are all balanced out in conjunction with the rest of the sounds in the narrative of the plot. This audio perspective allows the audience a greater sense of who is within the shot and where in relation to the given space these characters are. Let's stop here today and we will continue from tomorrow. From this point onwards, I'm gonna stop the recording and let's have a question answer session.